Hello students, I once again welcome you all on my YouTube channel, and in today's video we will be continuing with our solutions chapter, and most probably today we will finish off with our solution chapter. Okay, up till last video we have seen about the different colligative properties. In this video we will be covering the reverse osmosis. Then we will also see about the colligative properties for an electrolyte solution, because up till now we have seen the colligative properties for the non-electrolyte solutions only. Okay, non-electrolyte हम लोगों ने देखा था कि जब भी कोई सल्यूट non-electrolyte सल्यूट जो कि non-ionizable हो और कि non-volatile हो, ऐसे सल्यूट जब हम सॉल्यूशंस में ऐड करते हैं तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है और उन्हीं प्रॉपर्टीज को नाम दिया गया है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और ऐसी 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोगों ने अब तक के वीडियोस में देखी है। ओके, वो कौन कौन सी थी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज? Lowering of vapor pressure, elevation of boiling point, depression of freezing point, and osmotic pressure. In all these colligative properties, we have seen that whenever we add a non-volatile solute to a solution, तो क्या होता है? Freezing point decrease हो जाता है, boiling point बढ़ जाता है, vapor pressure भी कम हो जाता है, और इसी के साथ साथ हम लोगों ने ऑस्मोटिक प्रेशर भी देखा था कि ऑस्मोटिक प्रेशर किस तरह से काम करता है फॉर द डाइल्यूट एंड द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ओके, सो इन टुडेज वीडियो वी विल बी कंटिन्यू विद दिस चैप्टर एंड वी विल बी सीइंग द रिवर्स ऑस्मोसिस। ओके, आल्सो वी आर गोइंग टू सी in this video we will be covering the reverse osmosis, then colligative properties of electrolyte, Van't Hoff factor, modification of expressions of colligative properties and relation between Van't Hoff factor and degree of dissociation. ये सभी चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके, नाउ सबसे पहले रिवर्स ऑस्मोसिस। ओके, रिवर्स ऑस्मोसिस पे चलते हैं हम लोग, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ये सब बाकी के जो आपके इंडेक्स में जो हमने पॉइंट्स कवर किए हैं वो क्या है। बट सबसे फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी द रिवर्स ऑस्मोसिस। ओके, so in the reverse पिछले last video we have seen about the osmosis. Okay, in the last video we have seen about the osmosis, and in today's video we will see about the reverse osmosis. So let us first take a quick recap of what we have learned about osmosis. Okay, so osmosis मतलब क्या? osmosis और osmosis के लिए मैंने आपको एक सिंपल चीज सिंपल सा बताया था कि आप osmosis को याद रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप ये याद रख सकते हैं कि ऑस्मोसिस मतलब एक चाय की छन्नी। ओके, तो चाय की छन्नी में जिस तरह से ओनली द टी कैन पास एंड नॉट द टी लीव्स, उसी तरह ऑस्मोसिस में भी हम लोग एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज करते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करती है? इट अलाउज ओनली द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट एंड नॉट द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। ओके, तो ये जो ऑस्मोसिस हम लोगों ने देखा था कि अगर हम 2 बीकर लेते हैं और इस बीकर में मैं अगर इस बीकर को पार्टीशन करती हूँ एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, और एक साइड में मैंने ले लिया है सॉल्यूशन और दूसरे साइड में मैंने लिया है प्योर सॉल्वेंट, so what will happen? Only these solvent molecules will pass through the semi-permeable membrane and not the solute particles. These red ones are the solute particles, so these cannot pass through the semi-permeable membrane, but only the solvent molecule can pass through the semi-permeable membrane. And mostly the rate of flow of the solvent molecules takes place from dilute solution to the concentrated solution. ये हम लोगों ने last time देखा था कि जब भी solvent molecules move होंगे one side से दूसरी side, तो movement किस तरह से होगी? dilute solution से concentrated की तरफ। इसी को हम कहते हैं osmosis. बट आज हम लोग करेंगे, इसके आगे हम बढ़ेंगे और देखेंगे what is reverse osmosis. अब जैसे कि reverse osmosis, reverse का मतलब उल्टा। ओके, so reverse osmosis means opposite to that of the osmosis or to stop the osmosis. So this reverse osmosis में क्या होगा कि ये osmosis जिस तरह से होता है उसका उल्टे डायरेक्शन में जाएगा। Means in the osmosis we are saying that the solvent molecules move from the dilute solution to the concentrated solution. So if I reverse this direction, means if the solvent molecules flow from the concentrated side to the dilute side, then this will be called as the reverse osmosis. Okay, simple है। reverse osmosis मतलब osmosis का उल्टा। osmosis में क्या हो रहा है? जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है वो डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ मूव होते हैं, बट अगर मैं ऐसा कुछ करूं
जिससे कि ये जो प्रोसेस है उल्टी हो जाए, मतलब कि अब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कॉन्सेंट्रेटेड से डाइल्यूट की तरफ मूवमेंट करने लगे, तब हम उसे क्या कहेंगे? रिवर्स ऑस्मोसिस. ओके, so a process by which a solvent passes through the porous membrane in the direction opposite to that of the natural osmosis when subjected to hydrostatic pressure. अब ऐसा करने के लिए हमें कुछ प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा जो कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होना चाहिए. हम लोगों ने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है ये भी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था. किसी ने अगर नहीं देखा है लास्ट वीडियो, so please refer to the previous video and then move to the further video so that it will be easy for you to understand. Okay, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अप्लाई करने के बाद हम क्या कर सकते हैं? इसी ऑस्मोसिस के डायरेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं. दैट इज नथिंग बट रिवर्स ऑस्मोसिस. ओके, सिंपल वर्ड में है, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस इज रिवर्स्ड इट इज सेड टू बी रिवर्स ऑस्मोसिस. ओके, नाउ अब लेट अस अंडरस्टैंड दिस कि किस तरह से ये काम करता है रिवर्स ऑस्मोसिस. ओके, पहले हम ऑस्मोसिस देखते हैं. क्या है? अगर सपोज इफ आई एम टेकिंग दिस U-tube and in this U-tube I am placing one semi-permeable membrane. अब semi-permeable membrane क्या होती है ये भी हमने लास्ट वीडियो में देखा था. It allows only small particles to pass through them and not the large molecules. Small molecules such as polar molecules, gas molecules and hydrophobic molecules. These molecules can pass through the semi-permeable membrane, but the large molecules like the anions, cations, they cannot pass through this semi-permeable membrane. Large cations and large anions cannot pass through this semi-permeable membrane, and even the non-polar molecules cannot pass through the semi-permeable membrane. Okay, so in this case, this U-tube is partitioned by a semi-permeable membrane, and on the one side of the partition I have taken pure water and to the other side I am taking a solution. Solution किस चीज का solution? Water plus glucose. Okay, so is glucose solution is taken on this side and pure water is taken on this side. और बीच में हम लोगों ने प्लेस कर दिया semi-permeable membrane. So क्या होगा? जब भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इस तरह से पार्टीशन बन जाती है तब क्या होगा? द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल स्टार्ट टू पास थ्रू दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ओके, नाउ द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो विल बी फ्रॉम डाइल्यूट टू कॉन्सेंट्रेटेड. सो इन दिस केस प्योर वाटर इज डाइल्यूट बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी सोल्यूट पार्टिकल्स इन इट, वेयर एज दिस सोल्यूशन इज कॉन्सेंट्रेटेड. तो डायरेक्शन किस तरह से रहेगा? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल प्योर वाटर से सोल्यूशन की तरफ फ्लो करेंगे. यस, और कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो कुछ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स सोल्यूशन से सॉल्यूट की तरफ भी, सोल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की तरफ भी जाएंगे, लेकिन ये जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू दोस मूविंग फ्रॉम डाइल्यूट टू द कॉन्सेंट्रेटेड. अब क्या होगा? दिस इज द इनिशियल स्टेट. धीरे धीरे क्या होगा? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विल मूव फ्रॉम प्योर वाटर टू द सोल्यूशन एंड इन दिस वे अन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विल बी डेवलप, जिसको हम लोगों ने ऑस्मोटिक प्रेशर कहा गया था. लास्ट टाइम हम लोगों ने ये देखा था व्हाट इज हाइड्रोस्टैटिक ऑस्मोटिक प्रेशर. ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या काम करता है? जब ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स प्योर वाटर से सोल्यूशन की तरफ जाते हैं और यहाँ का लेवल बढ़ते जाता है, तो ये जो हाइट है, ये जो लेवल है, ये क्या करता है? एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप करता है. अब ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इसी को हम ऑस्मोटिक प्रेशर भी बोल रहे हैं यहाँ पर. ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कर रहा है? इट इज नाउ स्टॉपिंग दीज सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू पास फ्रॉम सोल्यूशन साइड टू द सॉल्वेंट साइड. ओके, फ्रॉम टू द प्योर सॉल्वेंट साइड. दिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर. अब इसके बाद भी अगर मैं और प्रेशर, अब क्या हो गया? सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ना यहाँ जा सक रहे हैं और ना यहाँ के यहाँ आ सक रहे हैं. एक इक्विलिब्रियम डेवलप हो गया. ओके, बट अगेन इस ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद भी मैं अगर और प्रेशर अप्लाई करती हूँ तो क्या होगा? अब ये प्रेशर क्या करेगा? इट विल अलाउ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू फ्लो फ्रॉम द सोल्यूशन टू द सॉल्वेंट. मतलब कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन से अब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स डाइल्यूट सोल्यूशन की तरफ मूव होना शुरू हो जाएंगे. एंड दिस इज कॉल्ड एज द रिवर्स ऑस्मोसिस. इसी को हम क्या बोल रहे हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस. ये रिवर्स ऑस्मोसिस कब पॉसिबल होता है? जब हम एक हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं जो कि इस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को
यहाँ सॉल्वेंट प्योर सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की तरफ मूव होने के लिए फोर्स करते हैं उस प्रेशर से। उसी प्रेशर को हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं पाई से, और ये जो प्रोसेस है उसको हम कहेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। ओके, सो ये इसे कहा जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। लेट अस अंडरस्टैंड it with this video. Okay, now in this video you can see that this is a semi-permeable membrane, and this side we have taken the pure solvent and a solution is taken over here in which we can see the solute particle. These are the solute particles. Now this membrane will allow only the solvent molecules to pass through it, means the water molecules are going to pass from this pure solvent to the solution part. This is known as the osmosis. ये simple osmosis process है जिसमें solute molecules जो है वो easily solvent की तरफ move होते हैं। ठीक है, now अगर मैं इस side pressure apply करता हूँ, if I apply a pressure on this side, then what will happen? जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा यहाँ के सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अब प्योर सॉल्यूशन की तरफ जाने लगेंगे, एंड दिस इज नोन एज द रिवर्स ऑस्मोसिस। अब ये जो रिवर्स ऑस्मोसिस है ये आपने कई बार अपने घरों में, बहुत से घरों में हम आजकल ये टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। So what is this? Most of you must be using the RO filters. RO filters क्या काम करते हैं? RO filters is nothing but the reverse osmosis filters. Okay? अब ये रिवर्स ऑस्मोसिस फिल्टर क्या करते हैं कि आपके जो वाटर, जो प्योर वाटर जो हमको NMC से मिल रहा है, जो नदी से मिल रहा है हम लोग को, it contains most of the salt. Undesirable salts are also present there. Unwanted particles are also there. कुछ कचरा रहता है उसमें। ये सब चीजों के लिए अब क्या करता है रिवर्स ऑस्मोसिस? व्हाट डज इट डज? रिवर्स ऑस्मोसिस नाउ प्यूरिफाई योर वाटर्स। ये जो आपका पानी जो आपका आ रहा है, दैट इज सपोज दिस सॉल्यूशन, एंड दिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आर नथिंग बट द कैंडल्स दैट आर यूज्ड इन योर फिल्टर्स। तो ये फिल्टर्स की जो कैंडल्स है वो क्या कर रही है काम? इट इज अलाउिंग ओनली द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू पास फ्रॉम सोल्यूशन टू द सॉल्वेंट साइड, और इसीलिए आपको ये जो फिल्टर में प्योर वाटर मिलता है और उसमें के मैक्सिमम सॉल्ट्स जो है वो यहीं पर रह जाते हैं। ओके, और इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को वो इस तरह से बिल्ड करते हैं ताकि जो कुछ अच्छे सॉल्ट्स है, व्हिच आर डिजायरेबल सॉल्ट्स फॉर आवर बॉडी, दे कैन पास थ्रू इट बट नॉट द impurities or the other particles। और इसीलिए ये रिवर्स ऑस्मोसिस से यू कैन सी दैट अगर एक सिंपल आप एक्वागार्ड यूज करते हो तो दैट वाटर टेस्ट different than the one those who are using the ROs. RO का पानी आपको ज्यादा मीठा लगता है। Why? Because maximum salts which generally give the taste to the water, these salts are purified with the help of the reverse osmosis. So this reverse osmosis इसका यूज किया जा रहा है in order to make use of salt water। जो सी वाटर है, हमारे पास पानी, पीने के पानी की बहुत कमी है, बट सॉल्ट वाटर हमारे पास बहुत है। वी ऑल नो दैट बहुत बड़े बड़े सी हैं एंड मैक्सिमम 70% ऑफ आवर अर्थ इज कवर्ड बाय द वाटर। तो अब ये जो सी वाटर है इसको हम प्योर वाटर में कन्वर्ट करके उसको पीने के काम ला सकते हैं, और उसी के लिए ये रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस की कोशिश की जा रही है ताकि ये हमको इजी अफोर्डेबल प्राइस में हम उसको प्योर वाटर में कन्वर्ट कर सके। क्योंकि फिलहाल इट इज वेरी एक्सपेंसिव टू कन्वर्ट द सॉल्ट वाटर। मीन्स आरओस जो है, जब हम घर पे लाते हैं आरओस, तो वो तो सिर्फ ठीक है 15 to 20 लीटर्स के लिए होता है, बट जब हम सी वाटर को अगर कन्वर्ट करने की बात करेंगे प्योर वाटर में, सो वी नीड अ वेरी लार्ज सिस्टम एंड दैट सिस्टम्स आर टू एक्सपेंसिव। तो उनको किस तरह से अफोर्डेबल प्राइस में लाया जा सकता है और किस तरह से सी वाटर को ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट किया जा सकता है, दैट ऑल वर्क आर गोइंग ऑन, and these all will be possible only through the reverse osmosis। okay, so this is reverse osmosis। समझ में आ गया आपको? reverse osmosis सिंपल है, osmosis का उल्टा। okay, that is reverse osmosis। now next topic is colligative properties of electrolytes। ठीक है, अब तक हम लोगों ने colligative properties पढ़ी थी। किनकी पढ़ी थी? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब क्या? ऐसे सल्यूट पार्टिकल्स जो कि आयोनाइज नहीं होते, आयंस में कन्वर्ट नहीं होते, उनको हम क्या कहते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इस तरह के नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जब सोल्यूशन में ऐड करते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट्स जब हम सोल्यूशन में ऐड करते हैं तब क्या होता है? डिफरेंट प्रॉपर्टीज टेक्स प्लेस।
जैसे कि उनका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, जिसे हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, जिसे हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड, फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो उनका डिप्रेस्ड हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, दैट इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और लास्ट देखा था हमने ऑस्मोटिक प्रेशर। ये सभी चीजें क्या करती है, अफेक्ट होती है बाय एडिंग, ये सभी जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये सभी चेंज होती है when we add a non-electrolyte solution, a non-electrolyte solute to a solvent, okay? बट अब हमको देखना है कि अगर हम इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट ऐड करते हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस तरह से चेंज होती है। अब जब हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तब जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं उसी तरह के चेंजेस इलेक्ट्रोलाइट में नहीं आते। इलेक्ट्रोलाइट्स डू नॉट ओबे द रिलेशंस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जिस तरह से नॉन इलेक्ट्रोलाइट काम करता है उस तरह से इलेक्ट्रोलाइट काम नहीं करता। उनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बहुत डिफरेंट है इलेक्ट्रोलाइट से। अब ऐसा क्यों? क्योंकि क्यों जानने से पहले हम ये देखेंगे कि जब भी हम कोई इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट ऐड करते हैं तो हमने पहला जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखा कि वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। तो जितना कम, अगर सपोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन डालने पर अगर वेपर प्रेशर 2 से कम हो रहा है तो इलेक्ट्रोलाइट डालने पर वो 4 से कम होगा या 6 टाइम्स कम हो जाएगा। सो द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आर ग्रेटर than those expected for the solutions of non-electrolyte of the same concentration. ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स में जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उनमें बहुत ज्यादा चेंज है। हम अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे 2 से चेंज होना चाहिए तो वो वहां पर 4 से चेंज हो रहा है। These changes, अब ये चेंजेस ऐसे क्यों हैं वो हम देखेंगे। ओके, अब सबसे पहले हम रिकॉल करते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है। हम लोगों ने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और वी नो दैट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड नॉट ऑन द नेचर। ये मैंने बताया था आपको कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज है जो कि सिर्फ कितने पार्टिकल्स हमने यूज किए, कितने पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट हमने ऐड किए हैं सॉल्वेंट में, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगी, ना कि कौन से सॉल्यूट पार्टिकल्स। सपोज मैंने ले लिया ग्लूकोज और यूरिया, 5 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के लिए, 5 मॉलिक्यूल्स यूरिया के लिए, दोनों को मैंने 100 ml सॉल्वेंट या 100 ml वाटर में ऐड किया, तो दोनों की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, एकदम सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है और ना ही उनके नेचर पे। मतलब हम ग्लूकोज यूज करें, हम यूरिया यूज करें या कोई भी एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट यूज करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हमने कितनी क्वांटिटी में यूज किया है ये अफेक्ट करता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब जब हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ऐड करते हैं तब क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट क्या करते हैं, ना तो वो डिसोसिएट होते हैं ना ही वो आयनाइज होते हैं, मतलब वो आयंस में भी कन्वर्ट नहीं होते और ब्रेक डाउन भी नहीं होते। तब ऐसे जो सॉल्यूट्स है वो क्या करेंगे, जितने मैंने 5 अगर मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट में ऐड किए तो वो 5 ही रहेंगे। ओके, वो 5 से 6 नहीं हो जाएंगे या 6 से 7 नहीं हो जाएंगे, जितने मॉलिक्यूल्स है उतने ही रहेंगे। सिर्फ वो क्या करते हैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अपनी ओर खींचते हैं और उससे हमारा सोल्यूशन बनता है, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि किस तरह से सोल्यूशन बनता है। सो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जो है दे डू नॉट गेट आयोनाइज और डिसोसिएट, तो जितना क्वांटिटी आप ऐड कर रहे हैं वो क्वांटिटी सेम एज इट इज रहेगी, इसीलिए उनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, कांस्टेंट। बट अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ऐड करती हूँ, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, द वन विच गेट आयोनाइज, द वन विच गेट डिसोसिएट, मतलब जो कि पानी में जाने के बाद आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। और सिंपल एग्जांपल है उसका आपका घर का नमक, NaCl। NaCl को जब हम पानी में घोलते हैं then it get converted into Na+ ions and Cl- ions। तो अब अगर सपोज मैंने एक ग्लास लिया है पानी का और उसमें मैंने डाला है सपोज 5 स्पून्स ऑफ शुगर और दूसरे में मैंने डाला है 5 स्पून्स ऑफ सॉल्ट। ठीक है, मतलब अब मैं क्या कर रही हूँ, एक में मैंने नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ऐड किया है और दूसरे में मैंने
इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट ऐड किया है। इसको थोड़ा सा एग्जांपल्स हम देखते हैं। अब यहाँ देख सकते हो, ये मैंने सपोज ये 1 ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है, उसमें मैंने डाले हैं ग्लूकोज और यहाँ डाला है मैंने NaCl। अब जब मैं ग्लूकोज ऐड करूंगी, सपोज 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन का मैंने सोल्यूशन बना लिया है। अब इस 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन में 4 पार्टिकल्स आते हैं ग्लूकोज के भी और 4 आते हैं NaCl के, ठीक है। अब जब मैं इनको वाटर में डालती हूँ तब क्या होगा, the 4 particles will remain as it is. They will just combine with the water molecule and will form a bond, and hence the total number of the molecules even after the preparation of the solution will remain 4 only. यहाँ कोई चेंज नहीं है क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स है वो ब्रेक डाउन नहीं हो रहे हैं। तो 4 मॉलिक्यूल अगर मैंने ऐड किए हैं 0.1 मोलार बनाने के लिए, तो ये 4 मॉलिक्यूल ही यहाँ पर सपोज प्रेजेंट है। अब यहाँ पे NaCl के भी मैंने 4 मॉलिक्यूल्स वाटर में ऐड किए थे, बट after getting mixed with the water, after reacting it with the water, it has now get dissociated into Na plus and Cl minus. मतलब 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl अगर मैं लेती हूं तो मुझे 4 Na plus आयंस मिलेंगे और 4 Cl minus आयंस, 4 Na plus and 4 Cl minus. The total number of the molecules in this glass is 8, whereas in this glass is 4. तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर इसकी 4 है, सपोज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, अगर ये 4 डिग्री से डिप्रेस हो रहा है तो ये कितने डिग्री से डिप्रेस होगा, 8 डिग्री से, उसका डबल, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया है, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स भी डबल हो गए हैं। सो इसीलिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, इसकी NaCl की डबल होगी एज दैट ऑफ द ग्लूकोज सोल्यूशन। सो इसीलिए जब हम एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन ऐड करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट ऐड करते हैं, तब क्या होता है, द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर ग्रेटर देन एज वी हैव एक्सपेक्टेड, जो कि हमने इस पॉइंट में कहा है दैट द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आर ग्रेटर than those to be expected for the solutions of non-electrolyte of same concentration. ठीक है, समझ में आई आपको ये बात? Okay, now next point पे मूव होते हैं हम लोग। Next point says the molar mass of the solution of electrolyte in aqueous solution। मतलब अगर हम मोलार मास की बात करें, अब अगर हमको मोलार मास कैलकुलेट करना है किसका, इलेक्ट्रोलाइट वाले सोल्यूशन का, जिसमें हम अब हम जितने भी सोल्यूशंस की बात करेंगे अब हम इलेक्ट्रोलाइट के साथ बात करेंगे। हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एंड नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ओके, सो द मोलार मासेस ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द एक्वियस सोल्यूशन। एक्वियस सोल्यूशन में अगर हम लेते हैं, एक्वियस सोल्यूशन मतलब डाइल्यूट सोल्यूशन तो अगर मैं डाइल्यूट सोल्यूशन में कुछ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट ऐड करती हूँ तो जो मोलार मास है, द मोलार मासेस ऑफ द सोल्यूशन determined by the colligative properties are found to be considerably lower than the formula mass। मतलब जितना एक्चुअल मास उनका होना चाहिए उससे ये मोलार मास बहुत कम आता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से हम लोगों ने मोलार मास कैलकुलेट करना देखा था, हम लोगों ने हर किसी के साथ देखा था कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और मोलार मास को रिलेट किया था, लोअरिंग ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड मोलार मास को इक्वेट किया था, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड मोलार मास को इक्वेट किया, हर किसी से हमने मोलार मास निकाला है। तो इन्हीं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से अगर मैं मोलार मास निकालना चाहूँ किनका, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन का, देन इट कम्स आउट टू बी मच लोअर देन द फॉर्मूला मास। मतलब जितना एक्सपेक्टेड उनका मास होना चाहिए या जितना एक्सपेक्टेड हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में जितना आता है उनका मोलार मास, उससे यहाँ पर मोलार मास बहुत ज्यादा ही कम आता है। अब ये हम देखते हैं why does it, solution to this question that why does the molar mass of the electrolyte solutions seems to be lower than the expected molar mass is given by the Van't Hoff factor. Okay, Van't Hoff is the name of the scientist and he had given one expression, or he had given one relation, and he had related the colligative properties of a solution of an electrolyte as well as the non-electrolyte, and he had expressed it with the help of simple I. Okay, so Van't Hoff factor ने ये एक I consider करके यहाँ पर क्या किया हुआ है, I लिया हुआ है और इस I से उसने एक रिलेशन दिया हुआ है, I का एक रिलेशन दिया हुआ है, जो रिलेशन क्या कर रहा है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कंपेयर कर रहा है। कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को, इलेक्ट्रोलाइट की और नॉन इलेक्ट्रोलाइट।
अब जनरली नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो डिसोसिएट नहीं होते एंड दे गिव द कोलिगेटिव, जो उनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, सो इनकी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो नेचुरल है, मतलब कि जितनी एक्सपेक्टेड होती है उतनी ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज उनकी शो होती है। सो इनको हम इनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को आइडियल समझ के वैन हॉफ ने क्या किया है, he had given a relation between the colligative properties of electrolyte solution and by using a relation of non-electrolyte. अब वो क्या बोलता है, he says that the Van 't Hoff factor is defined as the ratio of colligative property of a solution of electrolyte divided by the colligative property of non-electrolyte of the same concentration. तो उसने क्या किया, he had given a relation between the colligative properties of an electrolyte and non-electrolyte, and he had said that this Van 't Hoff factor is nothing but the ratio of, इसका ratio colligative properties of electrolyte solution upon the colligative properties of non-electrolyte solution. But to remember is that the condition is that the concentration of both electrolyte and non-electrolyte should always be the same. ठीक है, जब सेम कॉन्सेंट्रेशन होगा तभी हम इन दोनों की प्रॉपर्टीज को रिलेट कर सकते हैं, और इन दोनों की प्रॉपर्टीज को अगर हम रेशियो लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन टू नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, देन दिस इज कॉल्ड एज वैन 't Hoff factor. Or this Van 't Hoff factors gives us the relation between colligative properties, और ये बताता है हमको कि कितने से colligative property कम रहेगी या कितने से colligative property एक में की ज्यादा रहेगी। ये जो relation है ये हमको Van 't Hoff factor ने दिया हुआ है। तो अब Van 't Hoff factor क्या बोल रहा है, सपोज पहला हम ले लेते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग जो देते हैं उसको देते हैं डेल्टा TF। तो अगर मैं लेती हूँ कि इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF है, और इसको हम स्टैंडर्ड समझ के डेल्टा TF नॉट, मतलब डेल्टा TF अपॉन डेल्टा TF नॉट इज इक्वल्स टू I, देन अगेन I इज इक्वल्स टू डेल्टा TB अपॉन डेल्टा TB नॉट, देन डेल्टा I is again equals to delta P upon delta P naught, and I is equals to pi upon pi naught. This is osmotic pressure and for the electrolyte solution, and osmotic pressure for non-electrolyte solutions. Okay, so it is nothing but the actual moles of the particles in the solution after dissociation upon the moles of formula unit dissolved in the solution. मतलब हमने कितने moles add किए हैं, this is mole of formula unit, and after adding how many of that are getting dissociated. तो अब dissociate होने के बाद हमारे पास कितने actual moles है, ये हम लेंगे ऊपर में, और नीचे लेंगे हम moles of formula units dissolved in the solution, कितने मैंने dissolve किए थे. So this is nothing but formula mass of substance upon the observed molar mass of substance. So we can say this is nothing but M theoretical upon M observed. कितना आना चाहिए और कितना होता है actual में. So if we consider the non-electrolyte, then always the value of, suppose if I am adding one molecule, then it will remain one only. Okay, I will be remain one for non-electrolytes. But if I am taking KNO3, now this we know that potassium nitrate going to dissociate in water as K plus and NO3 minus ions. And NaCl is also getting dissociated into Na plus and Cl minus. तो अगर मैं एक मॉलिक्यूल पोटेशियम नाइट्रेट का वाटर में डालती हूँ या सोल्यूशन बनाती हूँ, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, मतलब यहाँ हो जाएगा 2 अपॉन 1, मैंने एक्चुअली ऐड किया 1, बट फॉर्मूला मास अकॉर्डिंग टू दिस वो कितने पार्टिकल्स में डिसोसिएट हो गए, 2 पार्टिकल्स में, तो I की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 2. सिमिलरली कैल्शियम क्लोराइड किस तरह से डिसोसिएट होगा, Ca2 प्लस, फिर एक Cl माइनस और एक Cl माइनस. ओके, सो इन दिस केस देयर आर 3 मॉलिक्यूल्स, तो I की वैल्यू क्या बन जाएगी 3. दीज ऑल आर फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस. जब भी हम डाइल्यूट सॉल्यूशंस ले रहे हैं तब ये जो I की वैल्यूज है इस तरह से चेंज होती है कि I की वैल्यू 1 आनी चाहिए, इसके लिए I की वैल्यू 2 आ जाएगी, इसके लिए I की वैल्यू 3 आ जाएगी, क्योंकि ये 3 मॉलिक्यूल्स में डिसोसिएट हो रहा है, ये 2 आयंस में डिसोसिएट हो रहा है. सो दीज इन दिस वे वी कैलकुलेट द वैन 't Hoff फैक्टर. अब अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन, ये तो हो गया डाइल्यूट सॉल्यूशंस, बट अगर मैं हाई कॉन्सेंट्रेशन पे ये सब चीजें कैलकुलेट करती हूँ, हाई कॉन्सेंट्रेशन मतलब सल्यूट की क्वांटिटी मैंने बहुत ज्यादा डाली है, तो
the colligative properties of strong electrolyte and their I values are usually smaller than expected. तब क्या होगा, जब मैं हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस लूंगी तब ये जो I की वैल्यू है वो कम आती है. मतलब सपोज NaCl, तो हमने कहा कि NaCl किस तरह से डिसोसिएट होता है, Na प्लस और Cl माइनस. मतलब एक मॉलिक्यूल मैंने NaCl का लिया तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे ऑटोमेटिकली. ये मैंने सपोज एक मॉलिक्यूल लिया है तो अब ये दो बन जाएंगे. पहला हो जाएगा इसमें Na प्लस और दूसरा इसका दूसरा आयंस बन जाएगा Cl माइनस. तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल NaCl का दो मॉलिक्यूल्स बन गए, पानी में डालने के बाद दो आयंस बन गए. तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो नंबर ऑफ आयंस के ऊपर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करती है. अब यहाँ पे दो मॉलिक्यूल हो गए तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, दो एक्चुअल होनी चाहिए. बट जब हम उसको मेजर करते हैं ओके तो इट कम्स आउट टू बी 1.9. मतलब एक्चुअल 2 नहीं आके अब ये कितनी आती है, 1.9. मतलब जितनी एक्सपेक्टेड है उससे थोड़ी कम आती है. ये भी हम क्यों आती है ये हम नेक्स्ट देखेंगे. उसके बाद सेम इन दिस वे HiO3 माइनस. तो अब HiO3 माइनस भी क्या होगा, H प्लस और IO3 माइनस में डिस्प्लेस होगा. मतलब यहाँ पे भी दो आयंस आने चाहिए एंड IO3, तो I की वैल्यू बन जाएगी 2 IO3 माइनस. तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए 2 लेकिन आती कितनी है, 1.7. सिमिलरली MgCl2, अब MgCl2 के मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाएंगे Mg2 प्लस में. ये जो है Mg वो हो जाएगा Mg2 प्लस और Cl2 जो है वो दो क्लोरीन आयंस बनाएगा. ओके सॉरी, Cl माइनस और फिर से Cl माइनस. तो इसका मतलब यहाँ पे 1 2 3, तो I की वैल्यू 3 होनी चाहिए बट इट कम्स आउट टू बी 2.7. सिमिलरली AlCl3, Al3 प्लस एंड TAl, इसके भी मॉलिक्यूल्स किस तरह से वाटर में डिसोसिएट होंगे, Al3 प्लस बनेगा और 3 क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स मतलब 3Cl माइनस आयंस हो जाएंगे डिसोसिएट. तो टोटल मॉलिक्यूल्स हो गए 3 प्लस 1 4. तो I की वैल्यू होनी चाहिए 4 बट इट कम्स आउट टू बी 3.2. अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज दीज आयंस और दीज मॉलिक्यूल्स शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर. किस तरह से, लेट्स सी. क्या होता है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द अपोजिटली चार्ज आयंस ब्रिंग द अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द आयन पेयर. अब क्या होगा यहाँ पर, जब हम सपोज NaCl को मैंने वाटर में मिक्स किया, ठीक है. वाटर में मिक्स करने के बाद ये तो डिसोसिएट हो गए Na प्लस और Cl माइनस में. अब वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है उनमें भी क्या है, H प्लस और OH माइनस. तो ये जो Na प्लस है वो क्या होगा, OH की तरफ अट्रैक्ट होगा और Cl माइनस जो है वो H प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा. और इस वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होगा किसके बीच में, अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच. और इसकी वजह से कुछ मॉलिक्यूल्स जो है, जो अभी अगर यहाँ पे डिसोसिएट होने के बाद 4 आयंस होने चाहिए थे, अब वो 4 आयंस ना रह के 3 आयंस होंगे. उसमें से एक आधा उसमें से कहीं और कनेक्ट हो गया, एक आधे ने जाके मॉलिक्यूल बना दिया. तो क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस जो है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो कम हो जाएंगे सोल्यूशन में और इसीलिए उनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कम हो जाएगी. So the electrostatic force between oppositely charged ions bring about the formation of ion pair. दूसरा एक रीजन है कि each pair contains one or more number of cations and one or more number of ions held together by electrostatic force of attraction. जो कि मैंने अभी बताया आपको कि क्या होगा कि एक या ज्यादा पेयर, कभी एक पेयर, एक मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एक आयन भी हो सकता है या ज्यादा आयंस भी हो सकते हैं, वो अपोजिटली इसको चार्ज हो जाएंगे और उसकी वजह से टोटल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो है वो कम हो जाएंगे. Hence, the total number of the particles in the solution decreases, causing the reduction in the expected I value and the colligative properties. अब देखते हैं क्यों ऐसा होता है. Suppose मैंने देखा कि ये K2SO4, ठीक है, इस K2SO4 को मैंने वाटर में मिक्स किया. After mixing it in water, it get dissociated into K plus 2 K plus ions and 1 SO4 2 minus ions. So यहाँ पे total molecules हो गए 3 number of moles. तो I की वैल्यू बन गई 3. बट अब अगर मैंने एसिटिक एसिड को बेंजीन में मिक्स किया, ओके, बोथ आर पोलर मॉलिक्यूल्स, तो एसिटिक एसिड को मैं अगर बेंजीन में मिक्स करती हूँ तो अभी क्या होगा, दीज दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, आपस में इस बेंजीन की मदद से, बेंजीन से एनर्जी लेके दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ डाइमर. सो दिस डाइमर अभी दो मिला के क्या हो गया यहाँ पे, दिस विल फॉर्म एन
I की वैल्यू जो हो गई वो अब क्या हो गई, हाफ हो गई. Dimerizes to form the half mole. तो 1 mole of acetic acid is now getting converted into half mole. तो I की वैल्यू हो गई I. So in half. So in this case the I value either increases or decreases depending upon कि उनका क्या हो रहा है. They are getting dissociated or they are getting associated. So in this way the I value changes, and this I value gives us the relation between the colligative properties of electrolyte एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट्स. एक और यहाँ पर देखते हैं. ठीक है, सपोज ये आयंस देख लिया आपने, मैंने जो आपको अभी बताया कि यहाँ पे आयंस क्या हो रहा है, वन और मोर पेयर ऑफ आयंस, ये सब क्या हो रहा है. सपोज मैंने ये NaCl ऐड किया है, दिस NaCl के क्या होंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ सब कंबाइन हो गए, कुछ Na प्लस आयंस वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन हो गया, और इसीलिए टोटल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो है, आयंस जो है, जो कि यहाँ पे सपोज अगर मैं 4 मॉलिक्यूल्स ऐड कर रही हूँ तो यहाँ पे Na प्लस के भी 4 होने चाहिए और Cl माइनस के भी 4 होने चाहिए. लेकिन ऐसा नहीं होता. क्या हो जाता है, कुछ मॉलिक्यूल आपस में ही डायमराइज हो जाते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स आपस में ही एसोसिएट हो जाते हैं, एंड हेंस द टोटल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस. So since these properties depend on number of the particles dissolved, solution of electrolyte show the greater changes than those of the non-electrolyte. और non-electrolyte में ऐसा कुछ नहीं होता, जितने molecules आपने ऐड किए they will remain as it is. Okay, so these are the colligative properties of non-electrolyte solutions. ये हम लोगों ने लास्ट टाइम देखी थी कि हम उसका एक्सप्रेस कैसे करते हैं. Lowering of vapor pressure is equals to x1 into p1 naught. Boiling point elevation delta TB is equals to Kb into m. Freezing point depression delta TF is equals to Kf into m. Osmotic pressure pi is equals to mRT. ये सब क्या है? These are the colligative properties of the non-electrolyte solution. Okay. Now, if I want to relate this with an electrolyte, so I have to add this Van't Hoff factor. Okay. So for the electrolyte solutions, the compound formula tells us how many particles are in the solution, and this Van't Hoff factor I will tell us what the effective number of ions are in the solution. क्योंकि हम लोगों ने बताया है कि I क्या है, measured value of electrolyte solution upon the expected value of non-electrolyte solution. So we can modify these expressions of vapor pressure lowering, boiling point elevation by adding a Van't Hoff factor. तो अगर मैं डेल्टा पी में Van't Hoff फैक्टर ऐड कर देती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, the colligative lowering of the vapor pressure for an electrolyte solution. So delta P is equals to I into X into P naught. This is for the electrolyte solution. Then again delta TB is equals to I into KBM. Delta TF is equals to I into KF into M, and pi is equals to I into MRT. So just we are adding I, we are multiplying I in all these factors to get the colligative properties of electrolyte solution. So these are the expressions to find out the colligative properties of the electrolyte solution. समझ में आया इतना आपको? सिंपल है कि एक Van't Hoff फैक्टर जो है वो एक रिलेशन दे रहा है आपको इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बीच में, और इसीलिए जितने भी एक्सप्रेशंस हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अब तक डिराइव किए हैं, lowering of vapor pressure, elevation of boiling point, depression in freezing point और osmotic pressure के लिए, उन्हीं में सिर्फ हमको क्या करना है, Van't Hoff फैक्टर ऐड कर देना है. अगर हम उसमें Van't Hoff फैक्टर ऐड कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं उसको, तो क्या हो जाएगा, it will give out the colligative properties of the electrolyte solution. Okay, this is about Van't Hoff factor. Now let us relate this Van't Hoff factor with degree of dissociation. कितने अमाउंट से असर जो है, कितनी अमाउंट से आपका सल्यूट जो है वो डिसोसिएट हो रहा है, कितना डिसोसिएट हुआ है, इसको अब हम रिलेट करेंगे Van't Hoff फैक्टर से. ओके, सो दिस विल गिव अस द रिलेशन बिटवीन Van't Hoff फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. बट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज जनरली स्टडीड ओनली फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट. हमेशा हम डिग्री किसके लिए पढ़ेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए. अब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या होता है, पहले हम वो देखेंगे. ओके, सो द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट मतलब सबसे पहले क्या है, जो कि आयंस में डिसोसिएट होता है. अब जो इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह से आयंस में कन्वर्ट हो जाता है वाटर में जाने के बाद या किसी और सॉल्वेंट में जाने के बाद, उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. मतलब जो ज्यादा डिसोसिएट हो रहा है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट,
जो कम डिसोसिएट हो रहा है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब ज्यादा डिसोसिएट हो रहा है वो जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जनरली बनता किससे है? कोई भी सॉल्ट कैसे बनता है? हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है सॉल्ट कैसे बनता है। रिएक्शन क्या पढ़ी है हमने कि एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो ये जो एसिड और बेस दोनों मिलके सॉल्ट बना रहे हैं। सॉल्ट मतलब जरूरी नहीं है हमेशा NaCl होगा, कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हम सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। सो एक एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब अगर इसमें एसिड और बेस जो हम रिएक्ट कर रहे हैं सॉल्ट बनाने के लिए, दोनों अगर स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया और दोनों को मिक्स करके हमने सॉल्ट बनाया, तो जो सॉल्ट बनेगा वो भी कैसा रहेगा? स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ओके, और अगर वो डिसोसिएट होता है तो देन इट विल बी अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और वही अगर मैंने वीक एसिड और वीक बेस को मिला के अगर मैं सॉल्ट बनाती हूँ, देन इट विल बिकम अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो कि कुछ प्रमाण में डिसोसिएट होगा। मतलब अगर मैंने 10 मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए 100 ml वाटर में, तो उस 10 मॉलिक्यूल्स में सिर्फ एक आधा मॉलिक्यूल या 2 मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे, बाकी सब एज इट इज रहेंगे। उन्हें हम क्या कहेंगे? जो कि कम प्रमाण में डिसोसिएट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। सो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो हम किसके लिए पढ़ेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स लिए, क्योंकि हाँ जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है वो तो पूरी तरह से डिसोसिएट होंगे, तो हम लोग इजीली कैलकुलेट आउट कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ आयंस बनेंगे। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं हो रहे, तो अब हमको पता नहीं है कि कितने मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हुए और कितने अनडिसोसिएटेड रहे। इसीलिए we are going to relate the Van't Hoff factor with degree of dissociation, and in which we are going to study the weak electrolyte. Okay, so weak electrolyte involve the concept of degree of dissociation that changes the Van't Hoff factor. तो suppose हम लोग एक ले लेते हैं रिएक्शन, एक आधा वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया हम लोगों ने, एंड दैट वीक इलेक्ट्रोलाइट इज सपोज AXBY, ठीक है, AXBY। अब ये X और Y क्या है यहाँ पर? दे आर द कोएफिशिएंट्स। जैसे कि मैंने कहा H2O, तो H2O में 2 क्या है उसका? कि 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का। उसी तरह से यहाँ पे हमने क्या किया? X मॉलिक्यूल्स ऑफ A एंड Y मॉलिक्यूल्स ऑफ B, दे आर कंबाइनिंग टू फॉर्म AXBY। अब ये है सपोज एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। So this weak electrolyte is going to dissociate in water. किस तरह से dissociate होगा? It will form some plus ions and some minus ions. अब कितने प्लस आयन और कितने माइनस आयंस, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किसके साथ कंबाइन हो रहा है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Y प्लस बनेगा एंड B X माइनस, एंड दीज आर द कोएफिशिएंट which are designating how many molecules are present there. Okay, so suppose in the starting I have taken 1 mole of this weak electrolyte. ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने ले लिया 1 मोल। अब मैंने उसको फिलहाल वाटर में ऐड नहीं किया है, सिर्फ मैंने 1 मोल ले लिया है। अब ये 1 मोल को जब मैं ऐड करती हूँ वाटर में, तो स्टार्टिंग में तो ये डिसोसिएट नहीं होंगे, तो स्टार्टिंग में Y प्लस भी नहीं बना और X प्लस भी नहीं बना, तो कितने इनिशियली कितने मोल्स रहेंगे? इसके भी 0 मोल्स रहेंगे और Y के भी B के भी 0 मोल्स रहेंगे। अब एट इक्विलिब्रियम, जब थोड़ी देर के बाद क्या होगा? इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाएगा। इक्विलिब्रियम डेवलप होना मतलब क्या है? कि जितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स वापस से एसोसिएट होके वापस से वीक इलेक्ट्रोलाइट बना रहे हैं, बिकॉज दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या है? This is getting converted into this, and again these are getting converted again into the weak electrolyte. So इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जब ये दोनों चीजें साथ में हो रही है, मतलब जितने मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे हैं, उस टाइम पर सपोज यहाँ पर अल्फा मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो गए, कुछ अल्फा मॉलिक्यूल्स जो है वो डिसोसिएट हो गए। तो जो मॉलिक्यूल्स नहीं डिसोसिएट हुए, जो मॉलिक्यूल्स AXBY के फॉर्म में ही रहे, वो कितने हो जाएंगे फिर? 1 माइनस अल्फा, क्योंकि अल्फा मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो गए, अल्फा मॉलिक्यूल्स X के भी डिसोसिएट हुए और अल्फा मॉलिक्यूल्स Y के भी डिसोसिएट हो गए, तो बचे हुए मॉलिक्यूल्स कितने हो गए? 1 माइनस अल्फा। 1 माइनस अल्फा क्या रहेंगे? एज इट इज रहेंगे AXBY के फॉर्म में। सो 1 माइनस अल्फा मोल इज इक्वल टू X into अल्फा मोल प्लस Y into अल्फा मोल एट इक्विलिब्रियम, where अल्फा is the degree of dissociation, X alpha is the mole of cation at equilibrium, Y alpha is the mole of anion at equilibrium,
and 1 minus alpha is the moles of undissociated electrolyte at equilibrium. Okay, so अब total number कितने मोल डिसोसिएट हो चुके हैं वो कितना होंगे 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा. अब इन्हीं को मैं सेम इसमें लेके आ जाती हूँ तो क्या बन जाएगा ये 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स प्लस वाई. सो 1 प्लस, अब इस अल्फा को अगर मैं कॉमन रखती हूँ क्योंकि वो एक्स अल्फा में भी है वाई अल्फा में भी है और 1 माइनस अल्फा में भी है. सो अल्फा को मैंने कॉमन निकाल लिया. सो इट विल बिकम x plus y minus 1. Okay, so this equation becomes 1 plus alpha into x plus y minus 1, that is equals to 1 plus alpha into, अब ये x plus y क्या है यहाँ पर, x plus y क्या है, टोटल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, कितने इलेक्ट्रोलाइट के जो मैंने मॉलिक्यूल्स डाले. ये हमेशा क्या रहेगा मोल फ्रैक्शन, मतलब हम लोगों ने देखा था मोल फ्रैक्शन हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर सोल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स. टोटल नंबर ऑफ मोल्स में हम क्या करते हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स उसके बन रहे हैं सभी को ऐड कर देते हैं. यहाँ पर x और y मॉलिक्यूल्स है तो दोनों को ऐड करने पर क्या हो जाएगा, कितने टोटल नंबर ऑफ आयंस ऑब्टेन्ड हो रहे हैं, दैट विल गिव्स अस द वैल्यू. So n will be equals to moles of ions obtained from dissociation of 1 mole of electrolyte. So we can keep n in place of x plus y. So it will become I is equal 1 plus alpha into n minus 1. अब हम इसको रिलेट करते हैं Bandt Hoff factor से. Bandt Hoff factor क्या बोल रहे हैं? We know that Bandt Hoff factor is nothing but the actual mole of particles in the solution after dissociation upon the moles of formula unit dissolved in solution. तो यहाँ पर actual moles कितने dissociation के बचे हुए हैं 1 plus alpha into n minus 1. So this will become 1 plus alpha into n minus 1. अपॉन मोल्स ऑफ फॉर्मूला यूनिट डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन. हम लोगों ने देखा कि कितने मोल्स हम लोगों ने ऐड किए थे 1 मोल. सो दिस विल बी अपॉन 1. सो द एक्सप्रेशन बिकम्स I is equals to 1 plus alpha into n minus 1. और अगर मुझे इसे अल्फा के फॉर्म में लिखना है तो अल्फा को मैं यही रखूंगी और ये हो जाएगा I अपॉन n minus 1 और ये प्लस 1 यहाँ जाके क्या बन जाएगा minus 1. सो अल्फा विल बी इक्वल्स टू I minus 1 अपॉन n minus 1. So this is the relation between the Bandt Hoff factor and degree of dissociation. Okay, so up till now here we have completed the solutions chapter and maximum topics. Maximum, I should not say maximum. All the topics I have covered for the state board. And if you still have any problem, if you still have any query, you may contact me. You may comment me, and in the next video we are going to start with a new chapter, or in the next video I will upload the numericals on this chapter. So till then, bye bye, thank you.